Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the NCERT solution for the chapter political theory. We have completed the chapter in 7 parts and I hope chapter is clear to all of you. And in today's class we are going to sum up the chapter with the NCERT solution. Right? So let us start now. Question number 1. It is asking from you which of the following statements are true or false about political theory. You will have to just find out which of the following statement is true and which of the following statement is false. Question clear? Let us start now. It discusses ideas that form the basis of political institutions. क्या आप पॉलिटिकल थियरी में वो सारी चीजें डिस्कस करते हो जिसके थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बेसिक्स प्रोवाइड करवाते हैं, बेस प्रोवाइड करवाते हैं? सो ऑफ कोर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आप पॉलिटिकल थ्योरी रीड क्यों करते हो? बिकॉज वी आर एबल टू स्टडी दोज आइडियाज ना बाय विच आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू वर्क, कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट फिलोसफी ऑल्सो, दैट फिनोमिना ऑल्सो. So of course it discusses ideas that form the basis of the political institutions. That is completely clear thing, completely right thing, right? Now statement B, it explains the relationship between different religions. क्या आपने पॉलिटिकल थियरी में कहीं ये पढ़ा कि आप डिफरेंट रिलीजन के बारे में आप उनके रिलेशन को डिस्कस करते हो? Have you studied it? Although on the basis of religion we understood there is equality, but we did not understand any of the thing that was particularly related to the religion only. We have understood that yes, on the basis of religion there is equality. We have understood the concept of equality on the basis of religion. Getting my point? But आपने कहीं religion के बीच का relationship नहीं पढ़ा. So that statement will be false. Fine. C statement, it explains the meanings and concepts like equality, freedom. Of course ये तो चीजें आप लोगों ने पढ़ी. Equality, liberty, fraternity, citizenship, वो सारी की सारी चीजें क्या होती, nationalism, secularism, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो. तो of course this is completely true thing, right? And the D statement, it predicts the performance of political party. क्या predict करती है? Political parties की performance को predict करती है. क्या आपको पहले ये बताती है कि ये political party ऐसा करने वाली है? तो of course not. We are able to understand the institutions by it. We are able to understand the core ideas by it, but we are not able to understand religion in it, and we do not study the political party performance in it. The ideology on the basis of political party we can feel, we can understand, but political parties क्या work करती, कैसे perform करती, that we do not study in it. I hope question first is completely clear to all of you, right? So let us come on now question number 2. Politics is more than what politicians do. Do you agree with this statement? आप लोगों ने ना जब चैप्टर शुरू हुआ था वहां ये स्टेटमेंट एज इट इज पढ़ी थी. पॉलिटिक्स इज नॉट लिमिटेड टू दैट व्हाट पॉलिटिशियंस डू, दैट इज समथिंग मोर देन दैट. क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? अब देखो, द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन रेज्ड ऑन द इशू. अब कई बार देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम ना क्यों हमेशा क्या करते हैं कि हम क्यों सोच लेते हैं कि पॉलिटिक्स हमेशा पॉलिटिशियन से कनेक्टेड होती है. देयर आर सम रीजंस फॉर दैट. अब देखो क्यों. पहले देखो, पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद मैनिपुलेशन एंड परस्यू एम्बिशंस एंड सैटिस्फाई वांट्स. अब देखो, पॉलिटिक्स को आप किसके साथ एसोसिएट करके देखते हो? हमने कई बार बोला है, कई बार सुना है, डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स विद मी. इट मींस इट इज समथिंग नेगेटिव ना. लेकिन देखो हम क्या फील करते, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स को हम क्या देखते हैं? हमेशा मैनिपुलेशन, मतलब चालाकी से कुछ चेंज कर देना, कुछ बदल देना. आप जो चाह रहे उसको चालाकी से गेन कर लेना, वही पॉलिटिक्स हम मान के चलते हैं, राइट? इसीलिए हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स वही होनी चाहिए जो पॉलिटिशियंस करते हैं. हम जैसे कॉमन लोगों का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. Political leaders and persons who contest election and hold public office are argued to after a public service. और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को या फिर पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करते हैं, आर आर्ग्यूड टू आफ्टर अ पब्लिक सर्विसेज. है ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो पब्लिक सर्विसेज वो सारी की सारी चीजें नहीं होती, बाद में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? मतलब वही होता है फिर बाद में जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं. उसके बाद a few people argue that politics is what politicians do. वो एक्चुअल में वही है जो पॉलिटिशियंस करते हैं. अब देखो, who sometime practices floor crossing. अब देखो, जैसे आया राम गया राम, commit false promises, pursue an individual interest in place of nation
as a whole or having a criminal background sometimes, what about the nation? जब आप पॉलिटिशियन की बात करते हो तो आप लोगों को हमेशा क्या फील होता है? आया राम गया राम, है ना? अपने इंटरेस्ट को पूरा करना, प्रोमिस से मुकर जाना, फॉल्स प्रोमिस करके चले जाना, सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना बजाय कि आप पूरे नेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को इंक्लूड कर देना. If we all will be doing these kind of things, then what will happen about the nation? Who will be taking care for the nation? Right? अब इसीलिए hence the following prescriptions can be found. आप क्या कर सकते हो? आप कुछ फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या है एक्चुअल में. It is unfortunate that politics has been associated with the pursuit of personal interest only, and the need is to realize that politics is an integral part of the society. क्या हम लोग देखो इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियंस करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, पर्सनल इंटरेस्ट की, वो चीजें कभी होती नहीं पॉलिटिक्स में. बल्कि हमें क्या रियलाइज करना चाहिए कि पॉलिटिक्स तो वो है जो एक सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, वो रियलाइज करने की जरूरत है. बट हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स हमेशा उसी के साथ एसोसिएट हो जाती है. किसके साथ? कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है. We are not able to realize what is happening in the society. Getting my point? After that, second, the important focus should be on how government are formed and how they function, because governments play an important role in different institutions and help people to fulfill their needs and aspirations. और बजाय इसके कि लीडर्स क्या कर रहे हैं, हमें प्रॉपरली हमारा फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही है ना? क्योंकि अगर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर अगर आप इन्विजिलेट करके रखते हो ना, तो आप लोगों ने चैप्टर की लास्ट वीडियो में यही पढ़ा कि हमें क्यों पढ़नी पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हमें उन सारी चीजों को एग्जामिन करना, इवैल्यूएट करना है कि कैसे सोसाइटी में सब कुछ हैपन होता है. राइट? अब देखो ये वही आपको बता रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट के वर्क को ना एग्जामिन करना, फंक्शंस को एग्जामिन करना है. और क्या करना है? हमें उन सारे के सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी एग्जामिन करना है ताकि हम ये फील कर सके, ताकि हम लोगों की नीड्स को, एस्पिरेशंस को, डिफरेंट चीजों को फील कर सके. राइट? और उसके बाद प्रॉपर्ली वर्क कर सकें. राइट? क्योंकि गवर्नमेंट ही तो सब कुछ करती है ना. गवर्नमेंट लोगों के एस्पिरेशंस को, नीड्स को फुलफिल करती है. तो अगर हम गवर्नमेंट को विजिलेंट होकर अगर इवेल्युएट करते हैं तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. देखो, अगर आप सोच के देखो, आपने खुद भी पर्सनली फील किया होगा, अगर आप किसी क्लास में हैं, आप जितने क्वेश्चंस पूछते हैं आपके टीचर उतने ही अटेंटिव, अलर्ट होते हैं. आप जिस क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछते, टीचर्स को भी क्या लगता है, अरे यार तो ऐसी ही क्लास है, इसमें तो कुछ भी पढ़ाओ चल जाएगा. राइट? द सेम थिंग इज विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो. अगर आप विजिलेंट हो तो गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी. समझ आया? गवर्नमेंट फिर एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में वर्क करती है. राइट? People may also be engaged in political activity to participate collectively in politics to promote social development and resolve the problems of the common people. और लोग भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज में. राइट? क्यों? ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके कलेक्टिवली हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में, और वो प्रमोट करें सोशल डेवलपमेंट को, प्रॉब्लम को रिजोल्व करें, और कॉमन पीपल की प्रॉब्लम को, एस्पिरेशंस को सामने रख सके कि एक्चुअल में वो लोग क्या चाहते हैं. दिस इज द थिंग. राइट? इट मीन्स जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ वही है ना जो पॉलिटिशियन करते हैं, वही नहीं है ना सिर्फ. समझ आया आप? इट इज हैविंग अ ब्रॉड कंसेप्ट. आज के बाद आप लोग कभी नहीं सोचोगे कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियन करते हैं, हमारा क्या लेना देना. फॉर बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, टू इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. राइट? एंड टू प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेट कलेक्टिवली इन द पॉलिटिक्स. समझ आया? Fine, I think now question number 2 is also clear to all of you. Now question number 3, vigilant citizen. ये वही आ गया. vigilant मतलब होता है aware citizens are a must for the successful working of democracy. Comment. अब देखो, आपसे पूछा गया क्या vigilant citizens जरूरी हैं? अवेयर सिटीजन, भाई देखो, जैसे सिटीजन होंगे वहां की वैसी गवर्नमेंट होगी, वैसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना? जैसा राजा वैसी प्रजा यहाँ पर, या फिर जैसी प्रजा वैसा राजा बनेगा. ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले राजा का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता था, बट डेमोक्रेसी तो प्रजा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. राजा तो है ही नहीं, हम जिसको चाहते हैं उसी को हम अथॉरिटी पर बैठा देते हैं. राइट? अब देखो, विजिलेंट सिटीजंस आर अ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द फॉलोइंग रीजंस. अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है.
Vigilant citizens encounter the corrupt actions of their representatives and democratic government due to be aware in the politics. अब देखो विजिलेंसी क्यों जरूरी है. अगर आप विजिलेंट हो तो आप अपनी गवर्नमेंट के, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के करप्शन वाले एक्शंस को, कि उन्होंने कैसे कैसे करप्शंस किए हुए हैं, है ना, कैसे कैसे वो वर्क कर रहे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के वर्क को भी तो इवेल्युएट, चेक तब कर पाते हैं जब आपको कुछ पता होता है. तो अगर सिटीजन्स अवेयर हैं तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एनकाउंटर कर सकते हैं. फिर अगर गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर वे वर्क नहीं कर रही तो फाइन. सेकेंड इज विजिलेंट सिटीजन्स फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन by forming associations, public meetings, etc. against the malpractices done by the politicians. For example, that is defection, false commitments to people, to look after only their own individual or family members' interest, etc. अगर विजिलेंट सिटीजन है ना तो ये सारी की सारी चीजें देखो, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो ना, जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है हमारी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, डिफेक्शन हो रहा है, अलग अलग लोग झूठे वादे करके आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, फिर कुछ भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना. टू लुक आफ्टर, हम देख पा रहे कि हमारी नीड क्या है, कंट्री की नीड क्या है, आप लोग उन सारी चीजों को अच्छे से एग्जामिन कर पाओगे. और फिर जो गवर्नमेंट हमें कई बार फुलिश बनाने की कोशिश करते हैं ना, दैट विल नॉट बी हैपनिंग. समझा क्यों? क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि आपके फॉर बीइंग अ सिटीजन आपके राइट्स क्या हैं, आप गवर्नमेंट से क्या क्या पूछ सकते हो. समझ आया? फाइन. उसके अलावा विजिलेंट सिटीजन्स कीप अ चेक ऑन रॉन्ग पॉलिसीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड करप्शन विच एंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी एज वेल. इसके अलावा क्या है, जो विजिलेंट सिटीजन होते हैं वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को भी तो चेक करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं, वरना गवर्नमेंट जैसे चाहे वो पॉलिसीज बनाएगी, है ना. ऑल तो देखो जो 3 फार्मर्स लॉज आए थे वो गलत नहीं थे पूरी तरीके से, बट हमें वो पसंद नहीं आए. लोग अवेयर थे तो लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया. मतलब गवर्नमेंट आर्बिट्री फॉर्म से कुछ नहीं कर सकते अगर जो सिटीजन है ना वो विजिलेंट है तो, है ना. बाय द गवर्नमेंट एंड करप्शन विच एंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी एज वेल. हम क्या कर सकते हैं, लोगों की रॉन्ग, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के ऊपर चेक रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं, करप्शन को रोक सकते हैं जो हमारी लाइफ्स को कहीं ना कहीं एंडेंजर कर रहा है. फाइन. उसके अलावा विजिलेंट सिटीजन्स कैन ऑर्गेनाइज द कैंपेन ऑल्सो टू नेगोशिएट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस टू परसुएड द गवर्नमेंट टू चेंज द लॉज इफ रिक्वायर्ड. और इसके अलावा क्या है, जो विजिलेंट सिटीजन्स होते हैं ना वो कैंपेन भी कर सकते हैं, वो नेगोशिएशंस भी कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं डिफरेंट पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ, है ना. अगर उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए दे आर नॉट एप्रोप्रिएट तो उनको चेंज करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से परसुएट कर सकते हैं. और अगर वो विजिलेंट ही नहीं फिर तो गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा लॉ बना दे. समझ आया? फाइन. इसलिए आपको विजिलेंट सिटीजन बनना जरूरी है और उसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना जरूरी है, राइट. Vigilant citizens aspire to create a better society by debating the actions of their representatives. इसके अलावा क्या करते हैं विजिलेंट सिटीजन्स, वो क्या करते हैं, एक बेटर सोसाइटी को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डिबेट करते हैं. उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो एक्शन ले लिया, जो वर्क कर लिया, उसके अगेंस्ट में कैसे वो डिबेट कर सकते हैं, है ना. तो उस डिबेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेटर सोसाइटी को जनरेट कर सकते हैं. समझ आया? इसीलिए आपको क्या है, विजिलेंट सिटीजन बनना बहुत जरूरी है, सो दैट आवर गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इन आर्बिट्री फॉर्म. वी कैन पुट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस ओवर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, एंड वी कैन डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द demands and aspiration of the society as well, right. I think question number 3 is also clear. Now question number 4 is asking, in what ways is the study of political theory useful for us. अब जो आप लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि क्यों हमें पढ़नी है political theory, है ना. अब देखो, identify 4 ways in which the political theory can be useful to us. अब देखो क्यों जरूरी है. Political theory advocates the various views to be needed as science or art. क्यों पढ़ना आपको, क्योंकि साइंस भी है, आर्ट भी है ना, सोसाइटी को समझने की. एज अ साइंस आप देखो क्या है, द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय डेविड ईस्टन. डेविड ईस्टन, या आप आगे फ्यूचर में रीड करोगे, मतलब नॉट इन 11th क्लास बट कुछ नेम्स आप स्टडी करोगे, बिहेवियरल अप्रोच से कनेक्टेड है ये पर्सन, डेविड ईस्टन. ठीक है, तो एज अ साइंस कैसे कनेक्टेड है, एज अ साइंस क्यों आपको पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल लगती है. अब देखो, a political theory ensures analytical scheme which renders research meaningful and describe the mutual relationship of political variables. अब देखो, अब साइंस में भी तो वही सारी चीजें लॉजिकल बेसिस पर होती हैं,
एनालिटिकल बेसिस पर होती हैं, है ना, आप उन सारी चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हो ना। तो वही कि पॉलिटिकल थियोरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल स्कीम को इंश्योर कर सकते हो, जिसके थ्रू आप रिसर्च को एम्पावर कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। आप म्यूचुअल रिलेशनशिप की, मतलब जो पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में, जैसे सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका क्या रिलेशन होगा, स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है, उसका क्या रिलेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितने पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं वो आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। समझ आया। Second is the comparative study of various researchers verify the conclusion and reveal the areas to be required more imperial work. और जब अब तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी आप लोगों ने रीड किया है ना, फिर अब जब ब्रॉड वे में स्टडी करते हो पॉलिटिकल साइंस, तो आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, डिफरेंट कंट्रीज की, डिफरेंट रिसर्च की आप कंपैरेटिवली स्टडी करते हो, और फिर आप कंक्लूजन देते हो। तो ये चीजें क्या है, ये भी तो आपको क्या करती हैं, इंपैरिकल वे में आपको अपना वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है ना। और अगर आप इंपैरिकल वे में वर्क करोगे तो ऑफ कोर्स दैट विल बी द साइंटिफिक वर्क, है ना। और इस वे में क्या होगी आपकी, ये पॉलिटिकल थ्योरी आपको साइंटिफिक वे, साइंटिफिक विजन प्रोवाइड कराती है। Our relative consistent concepts make research more reliable. और इसके अलावा क्या है, जब आप कंसिस्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हो वो रिसर्च को ज्यादा रिलायबल भी बना देते हैं। समझ आया। मतलब आप रिलेटिवली चीजों को कंसेप्ट करके कंसिस्टेंट वे में स्टडी करते जाते हो तो आपको इस चीजों को ज्यादा रिलायबल बना देती हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। एज अ साइंस, राइट, एज अ सोशल एंड नेचुरल एंटिटी, इन द वर्ड्स ऑफ रिट एंड मिल्स। अब कैसे एक नेचुरल और आपकी सोशल साइंस है ना, वो कैसे है, इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिफाइड प्रैक्टिसेस टू मेक क्रिटिसिज्म एंड टू डिटरमाइन पॉलिसीज। अब आप जब इसको इन द फॉर्म ऑफ सोशल स्टडी करते हो, है ना, तो वहां पे क्या है, एक आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करते हो। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, है ना, आप पॉलिसीज को डिटरमाइन कर सकते हो कि ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये अच्छा, ये गलत है, वो सारी की सारी चीजें, राइट। समझ आया। उसके अलावा क्या है, इट प्रिपेयर्स गोल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एस्पिरेशंस एंड पॉलिसीज मेड एट वेरियस लेवल ऑफ आइडियल्स। इसके अलावा ये क्या करती है, कुछ गोल्स और गाइडलाइंस भी बनाती है, प्रिपेयर करती है, किसके लिए, फॉर एस्पिरेशंस एंड पॉलिसीज, जो डिफरेंट लेवल्स पे बनती है ना, डिफरेंट आइडियल्स की आपकी पॉलिसीज बनती है, एस्पिरेशंस बनती हैं, तो उनके लिए क्या गोल्स होने चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, उनके लिए आपको प्रिपेयर कर देती है, राइट। उसके अलावा इट प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स टू मीट बोथ द एंड्स एंड मीन्स। अब जब आप पॉलिटिक्स रीड करते हो तो आपके कुछ एंड्स होते हैं कि हमारा स्टेट ऐसा बनेगा, है ना, हमारा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट होगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, राइट। और मींस क्या कि आप रिलीजन बेसिस पे इक्वालिटी एस्टैब्लिश करोगे, है ना, आप सभी को इक्वली ट्रीट करोगे, फ्रीडम प्रोवाइड करवाओगे। तो वो स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको एंड्स को गेन करना है बाय योर मींस, वो सारी चीजें आप स्टडी कर लेते हो, राइट। उसके अलावा इट अज्यूम्स द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी अराइजन इन द सोसाइटी एज वेल एज सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। और ये आपको क्या बताती है कि सोसाइटी में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं, आप उनको कैसे टैकल करोगे, कैसे सॉल्व करने वाले हो, वो सारी चीजें आप बड़े अच्छे से इसमें स्टडी करते हो। फाइन। तो इसीलिए आपकी सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाता है। फाइन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो, पॉलिटिकल थियोरी कैन बी कंक्लूडेड एज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डेटा। इट ऑल्सो एम्स टू अचीव अ बेटर वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इसको आप क्या मान सकते हो, डेटा का कलेक्शन मान सकते हो ना, पॉलिटिकल डेटा का, पॉलिटिकल एनालिसिस का आप डेटा मान सकते हो सिस्टमेटिक वे में। और इसके अलावा ये आपको एक बेटर वर्ल्ड आप कैसे बना सकते हो, है ना, वो सारी चीजें आप इसमें अचीव करने के लिए इसको स्टडी करते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें स्टडी कर लेते हो। फाइन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट अ गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर टू लिसन टू यू। क्या आप सोच सकते हो, देखो जैसे आपने सोक्रेट्स की बुक पढ़ी, पूरी की पूरी रिपब्लिक के रिगार्डिंग कंटेक्स्ट पढ़ा, है ना, वो कैसे अपनी बात को लॉजिकल वे के साथ मनवाते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हो, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देते हो, तो क्या दूसरे आपकी बात को सुनते हैं? तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है। अब देखो, यस आई अग्री दैट गुड आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर्स टू लिसन टू मी बिकॉज एवरीवन हु इज रैशनल ऑलवेज टेक्स इंटरेस्ट इन डिबेट्स, कन्वर्सेशन और इंट्रैक्शन टू रीच एज अ बेटर कंक्लूजन। हमें क्या पता है कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड होगा कन्वर्सेशन में, इंट्रैक्शन में, तो जरूर इंटरेस्ट लेगा बेटर कंक्लूजन निकालने के लिए,
है ना. एवरी इंडिविजुअल इज इम्प्रेस्ड विद द लॉजिक एंड रैशनल पॉइंट टू बी अग्रीड कन्विक्टेड अपॉन. और हर एक को इम्प्रेस होना पड़ता है. सोचो आप किसी बात के बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहे हो, है ना, तो दूसरी पर्सन आपकी बात को चीज सुनना भी ना चाहे, बट इवन देन दे विल हैव टू लिसन कि कुछ तो लॉजिकल है, कुछ तो रैशनल है इसकी बात में, राइट. इन अ पॉजिटिव मैनर इफ आई मेक द एफर्ट्स टू कन्विंस अदर दे लिसन टू मी वेरी केयरफुली. और वो अच्छी बात है ना कि अगर आप पॉजिटिव वे में कुछ चीजें बता रहे हो तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले सामने वाले आपको बड़े अच्छे से सुनते हैं. दे लिसन यू वेरी केयरफुली. In our discussion or debate, even people participate to make their doubts clear and get convinced. और अच्छी चीज क्या है, मान लिया आप डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि पब्लिक भी क्वेश्चंस पूछती है. सपोज आप कोई सी न्यूज चैनल पे ना डिबेट देख रहे हो पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो दो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज एंड आइडियाज. बट उसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा कई बार ऐसा होता है कि कोई पब्लिक जो एज अ ऑडियंस बैठे वो भी क्वेश्चंस पूछते हैं. तो वो चीजें क्या बनाती हैं, वो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं. और उसके अलावा हो सकता है आप कुछ ऐसा रैशनल डेटा भी कलेक्ट कर लेते हो, है ना. अगर आप डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, तो वी कैन डू व्हाट कैन वी डू, वी कैन क्लियर आवर डाउट्स आल्सो एंड वी कैन बी कन्विंस्ड आल्सो. फाइन. आई होप टिल क्वेश्चन 5 एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज क्वेश्चन 6 saying from you? Do you think studying political theory is like studying mathematics? क्या आपको लगता है कि आप जो पॉलिटिकल थियोरी पढ़ते हो ये पढ़ना एक मैथमेटिक्स के जैसा है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपको अपने आंसर के लिए रीजंस देने हैं. अब देखो, नो, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोग पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थियोरी, तो हमने एक उसी में बुक में पढ़ा था, चैप्टर में ही, कि मैथ्स भी पढ़ते हैं. ऑल तो हमें सबको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, बट इवन देन व्हाई डू वी स्टडी? क्योंकि उसकी जो कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती है ना, वो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ जो होती है उसमें बहुत बेनिफिशियल होती है. लेकिन क्या पॉलिटिकल थियोरी और मैथमेटिक्स की स्टडी सिमिलर है? क्या वो सेम है? अब देखो, नो, स्टडिंग पॉलिटिकल थियोरी इज नॉट लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स कैन हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एनी शेप और पर्टिकुलर एरियाज विच मे बी एप्लीकेबल एज पर नॉर्म्स. अब देखो, जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हो हमेशा क्या होते हैं मैथ्स में? फॉर्मूलाज, है ना. उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे यू आर एबल टू गेट द सोल्यूशन. अगर आपने फॉर्मूला सही तरीके से लगाए हैं, प्रॉपर वे में लगाए हैं, तो यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर. तो मतलब आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, है ना, जो एप्लीकेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन. बट आई हैव टोल्ड यू सेवरल ऑफ द टाइम्स कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, फिर सोशल साइंस की कोई भी ब्रांच स्टडी करते हो, उसका कनेक्शन हमेशा किसके साथ होता है? दैट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स, राइट. इट मीन्स आप उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं पढ़ते कि आपने ये पढ़ा तो इसका डेफिनेटली रिजल्ट वही निकलेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग विद whom? वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स. और जब आप ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हो तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि वो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर तो बार बार चेंज हो जाता है. और अगर वो बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग उतने स्टेबल वे में डिसीजंस नहीं दे पाते हैं, है ना. तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल जो लैब है दैट इज द होल ऑफ द वर्ल्ड. हम मैथ्स की तरह से कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते जो टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाए. बट पॉलिटिकल थियोरी डील्स विद द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल and states who may have different opinions or different issues to be encountered to develop harmonious relations. और क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल थियोरी हमारे किसके साथ डील करती है? हमारी सोसाइटी के साथ डील करती है, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती है, हमारी क्या नीड्स है, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं, है ना. और उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इश्यूज, तो उनको एनकाउंटर करते हैं. और फिर क्या कोशिश करते हैं? फिर कोशिश करते हैं कि एक हार्मोनियस रिलेशन कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाए. दैट वी ट्राई टू डू. इट मीन्स कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल थियोरी है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई नहीं होती हैं. बट इवन देन वी आर एबल टू से दैट यस, बाय रीडिंग द पॉलिटिकल थियोरी वी कैन बी रैशनल, and on the basis of that particular thing we can establish and we can ensure the harmony in the relationship also, right? So I hope all of the questions, 6 questions were there in this particular chapter. I hope now all of the chapter as well as the NCERT solution exercise that is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with a new chapter, right? Try to revise everything because
chapter is complicated, but you can, if you are revising it again and again, you will be able to understand it properly. If you are having doubts, you can ask it, right? So till then, you can revise everything, and definitely the most important thing, stay connected. And if you are able to understand the chapter, if you are able to understand the question answer, please press the like button and subscribe the channel as well, right? We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.